الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علیک علی عباد اللہ اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اب تعالیٰ نے ان کی برائیاں دور کر دیں، ان کی اصلاح فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور جو بھی اس چیز پر ایمان لے کر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی برائیاں دور فرما دیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی بھی اصلاح، اس کے عقائد کی بھی اصلاح فرما دیں گے۔ جو قرآن سے رہنمائی لے گا، یہ شرط ہے۔ اگر قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں لیتا اور رہنمائی کے لیے انہوں نے دوسرے طریقے ایجاد کر لیے ہیں تو وہ سراسر گمراہی کے اندر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انسان ہمیشہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر بھی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی اگر ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَخُلْقِ الْعَظِيمِ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بلند فرما دیا۔ جس کے اخلاق کو اللہ بلند کر دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے اخلاق کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بلند فرمایا۔ اگر حوض کا ذکر ہو تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قیامت والے دن حوض کوثر سے نوازا ہے۔ یہ حوض ہے کیا؟ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے 1000 میل کی مسافت کی ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اس کا پانی اور شہد سے میٹھا ہے اس کا پانی۔ اور قیامت کے دن جب کچھ بھی پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر کوئی پیاسا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اگر اس کو کٹورا پانی کا مل جائے گا تو قیامت کا وہ دن آرام سے گزر جائے گا، بلکہ کبھی بھی اس کو دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اتنا زبردست پانی ہے اس حوض کا، لیکن صرف اور صرف وہ نہیں کو مل سکتا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے میں ایک شعر کو آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کچھ آیات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ اب کیا خوبصورت انداز کے اندر تذکرہ کیا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ سے مراد ہے اے روشن چہرے والے۔ یہاں پر کوئی اور کسی قسم کی قسم نہیں کھائی اللہ رب العزت نے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت۔ اور جہاں پر آپ کی اس کے بعد کیا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، واللیل اذا سجا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की कसम खाई है, आपकी जुल्फ़ों की कसम खाई है, यानी एक तरफ रोशन चेहरे की कसम उठाई है और दूसरी तरफ आपके स्याह बालों की कसम उठाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कितना पसंद है, आपके बाल कितने पसंद हैं कि आप अपने नबी के चेहरे की भी कसम उठा रहे हैं और बालों की कसम भी उठा रहे हैं। और फिर देखें वो कितना खूबसूरत शायर ने नक्शा खींचा है। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, अबू बकर इधर उस्मान उधर। फिर सुने, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, अबू बकर इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के घोड़ों के टापों की भी, असहाब के हर अमल की गवाही भी कुरान के अंदर मौजूद है। असहाब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो गया, उनसे रज़ात की भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर गवाही दे दी और वो भी अल्लाह से राज़ी हो गए। इस चीज़ की भी गवाही कुरान ने दे दी। और इसके साथ साथ फिर सुने, सब सहाबा दोज़ाने बैठे होंगे मजलिस में, दरबार का आलम क्या होगा। खाई है कसम खुद कुरान ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की, जब असहाब का जिक्र है कुरान में, सरकार का आलम क्या होगा। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो मुजाहिदीन हैं, जब वो निकलते जिहाद के लिए तो अल्लाह ताला को उनके घोड़ों के दौड़ते हुए घोड़ों की जो जब दौड़ते तो उसके जब वो गर्दो गुबार उठाते तो वो गर्दो गुबार भी बड़ा पसंद है। अल्लाह की राह में जाते हुए जब जानों के नजराने पेश करने के लिए वो गए तो अल्लाह को वो जानों के नजराना इस कदर पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा कुरान में कर दिया और बड़ा प्यारा नक्शा शायर ने खींचा। और उसके साथ साथ ये बता दिया कि अगर ऐसे असहाब हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे रफ़ीक हैं अल्लाह के रसूल के, तो अल्लाह के रसूल का आलम क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अब इसके साथ साथ अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमा दिया, जब कुफार ने, ख़ास तौर पर यहूदियों ने और नसरानियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर चंद सवालात पूछे, जिनमें कहा गया कि अल्लाह कहाँ पर है। दूसरा सवाल ये था कि असहाबे कहफ़ कौन हैं। इस किस्म के सवालात जब पूछे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पर बहैसियत इंसान इंशाअल्लाह कहना भूल गया। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी कि मुझे बीच में शामिल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल वही के बगैर जो बात नहीं फरमाते थे। जो भी बात करनी होती थी अल्लाह की तरफ से वही आती थी, दूसरों को बताते थे, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते थे। जैसे कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है, व नजमी इज़ा हवा मा साहिबुका व मा गवा। ये इस बात की रोशन दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से बात नहीं फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात फरमाते तो अल्लाह की वही के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ उस बात को करते, कभी भी अपने पास से किसी चीज़ की दलील देने की कभी भी कोशिश ना करते। तो यहाँ पर अगले दिन जब वो लोग आए तो उन्होंने वो सवाल के जवाबात मांगे, तो जिब्राइल अमीन वही लेकर नहीं आए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कल जवाब दूंगा। अगले दिन फिर वही नाज़िल न हुई, हत्ता कि 18 दिन गुजर गए। तफसीर में आता है कि 18 दिन ऐसे ही गुजर गए और उन 18 दिनों के अंदर यहाँ तक कि आपकी फुफी जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने आकर यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो तेरे रब ने भी तेरा साथ छोड़ दिया, अब तो तू कम अज़ कम इस बात को छोड़ दे कि तू नबी है, ये है वो है। इस किस्म की बातें ताने जब दिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमज़दा हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कि बच्चे को बहलाते हैं, जैसे जिस तरीके से तसल्लियाँ देते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को समझा रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं। और वहाँ पर अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम पाई, वज़ुहा। यहाँ पर कसम उठाकर कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वल्लैलि इज़ा सजा। दूसरी कसम आपकी जुल्फ़ों की उठाई है। किसी कायनात के अंदर अल्लाह बता रहे हैं कि मुझे ये आपसे ज़्यादा ना को अजीज़ है, ना किसी को मैंने अजीज़ रखा है। आप मेरे रफ़ीक हैं, आप मेरे हबीब हैं,
आपके रोशन चेहरे की कसम है, आपकी इन जुल्फों की कसम है, माँ बद्दा का रब्बू का माँ कला, कि अल्लाह ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। ये लोगों के मुंह की बातें हैं, इन लोगों ने आपको तंग किया है। ये लोग समझते हैं कि अल्लाह ने आपका साथ छोड़ दिया है। अल्लाह ने आपका साथ ना तब छोड़ा था जब पैदा हुए थे तो आपका बाप नहीं था, उस वक्त भी आपका साथ नहीं छोड़ा था कि आप जब छोटे से थे, सिर्फ छोटी सी उम्र में 6 साल की उम्र में जब आपकी वालदा भी इंतकाल कर गई थी, अल्लाह ने उस वक्त भी आपका साथ नहीं छोड़ा था। फिर उसके बाद 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से, इस जहान से रुखसत हो गए थे, तब भी अल्लाह ने आपका साथ नहीं छोड़ा था। अल्लाह ने यतीमी के अंदर जब आप छोटे से बच्चे थे तब भी आपका साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवानी के अंदर जब लोगों ने आपको सादक भी कहा, अमीन भी कहा, उस वक्त भी आपका साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा, ना गारे हिरा के अंदर छोड़ा, ना गारे सौर के अंदर छोड़ा। हज़रत अबू बकर सदीक आपके साथ हैं, उस वक्त भी अल्लाह ने उस वक्त भी कुरान के अंदर बता दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और सदीक इस गार के अंदर अकेले नहीं हो, मैं रब तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हज़रत उस्मान के लिए बैत ली उस दरख्त के नीचे, तो अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा यहाँ तक फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नबी तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। यहाँ पर बात वाज़ेह होगी, जब इंसान पैदा होता है तो जब कहा जाता है उसके एक कान के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसका मतलब यह है कि अब अगर अल्लाह का जिक्र आया है, इंसान के पैदा होते ही अगर अल्लाह का जिक्र उसके कान के अंदर आया है, तो उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल का जिक्र भी उसके कान के अंदर आया। दूसरे कान के अंदर जब अजान कही जाती है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, उसके साथ ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज भी इसी तरीके से अजान के दूसरे कान के अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है वहाँ पर अल्लाह के रसूल का जिक्र भी है। इसी तरीके से जब अजान कही जाती है तो उसके अंदर भी जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है। अगर नमाज पढ़ी जाती है तो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है। यानी इबादत के अंदर भी अल्लाह ने अपने रसूल के जिक्र को साथ शामिल फरमा दिया। जहाँ जहाँ पर भी, जैसे भी नमाज की कोई भी हालत है, तहय्यातों में बैठे हैं, जैसे ही आप तहज्जुद की हालत में बैठे हैं, तब भी अल्लाह का जिक्र किया तो अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल का जिक्र। इसी तरीके से जब भी अल्लाह ने अपना जिक्र कहीं पर भी फरमाया है इस कायनात के अंदर, तो आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि उस अपने जिक्र के साथ आपके जिक्र को ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शामिल फरमाया। और यहाँ तक फरमा दिया इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशक दरूद भेजते हैं। या ईमान वालों, तुम भी अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद भेजा करो। उसका फ़ायदा क्या है? इंसान को अल्लाह ताला ने फलाह नजात दे दी। अगर कोई दुआ नहीं मांग सकता अल्लाह से, अगर कोई अपने लिए दुआ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए दुआ नहीं कर सकता, उसके दिल के अंदर जो भी मुराद है, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम सिर्फ मेरे नबी पर दरूद भेज दिया करो, मैं तुम्हारी दुआओं को जो तुम्हारे दिलों के अंदर हैं उनको भी सुन लूँगा और उसके साथ साथ उनको कबूल भी फरमा लूँगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर सके हम। बेशक अल्लाह ने फरमा दिया कुरान के अंदर, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक हमें उनके उस पर चलना है, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है। और कुरान के अंदर जिसकी ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए कहा गया, तकरीबन 1700 आयात हैं कुरान पाक की, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इत्तबा करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अगर तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हो तो इसके अंदर मेरी इत्तबा है। अल्लाह हमको हदायत दे, हम हमेशा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पर कायम रहें। और उसके साथ साथ जब हमारी मौत आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुसलमान इस दुनिया से उठाएं, और वो कलमा जिसकी हमने गवाही दी है अल्लाह उस वक्त हमारे लबों के ऊपर नसीब फरमाए और हमारी निजात फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।